یا حسین 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 اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، بے جان کفر ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حضرات، محرم 2020 1442 ہجری میں عزاداری کے سلسلے میں آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کی ایڈوائزری کہ ہم اس سال 2020 میں کیوکر اپنے عزاخانوں میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستیوں میں ایام عزا محرم کو کس طریقے سے کریں۔ آل انڈیا شیعہ پسلا بورڈ کا ایک جلسہ بتاریخ 5 اگست 2020 آن لائن زوم ایپ کے ذریعے منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مختلف صوبوں اور شہروں سے حضرات علماء، خطباء، ذمہ داران قوم کی رائے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بورڈ کے سامنے آئی۔ اس کے علاوہ مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسین سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی صاحبان و دیگر مراجع کرام نے نجف اشرف، عراق اور قم مقدس ایران سے عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بورڈ نے ایام عزا میں مجالس اور جلوس عزا کے سلسلے میں عزاداری کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، ہماری پہچان ہے۔ شیعوں نے اپنی قربانی دے کر اس کی حفاظت کی ہے اور اس کی شان و شوکت کو قائم رکھا ہے۔ مذہب نے ہم کو حفاظت نفس اور انسانیت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کی خاطر قربانی دی۔ شیعوں نے تمام عزاداری مخالف طاقتوں سے مقابلہ کیا اور عزاداری کو باقی رکھا، لیکن کرونا جیسے مرض سے ابھی تک کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ اس مرض سے اپنے کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایام عزا میں ہم کو اپنے عزاخانوں، عاشور خانوں کو سنسان نہیں رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے عزاخانوں کو، اپنے عاشور خانوں کو سونا اور سنسان نہیں رکھنا ہے۔ عزاخانے و عاشور خانے میں مجالس کا اہتمام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مرثیہ خوانی کی مجالس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایام عزا میں مندرجہ ذیل باتیں پیش نظر رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو۔ مجالس کے لیے جو ایڈوائزری ہے، ایک ایڈوائزری ہماری مجالس کے لیے ہے، ایک محرم میں اٹھنے والے جلوسائے عزا کے لیے ہے۔ نمبر 1، حسب سابق عزاداروں کے گھر میں عزاخانے سجائے جائیں اور فرش عزا بچھایا جائے، یعنی ہمارے گھروں میں عزاخانے سجیں اور فرش عزا کو بچھایا جائے۔ ہر منعقد ہونے والی مجلس میں اور گھروں میں منعقد ہونے والی مجلس میں بھی فاصلے کا خاص خیال رکھا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کا، ہم چاہے مرکزی مجالس ہو چاہے اپنے گھروں کی مجلس ہو، اس میں خاص خیال رکھا جائے۔ جن جن علاقوں یا شہروں میں مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں جہاں تک ممکن ہو آن لائن یا مذہبی ٹی وی چینل کے ذریعے فاصلے برقرار رکھتے ہوئے مجالس کو سنا جائے۔ نمبر 4، اپنے اپنے گھروں، امام باڑوں اور عاشور خانوں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کالے پرچم لگائے جائیں۔ یہ ضروری ہے اس سال محرم میں ہم اپنے گھروں میں، اپنے عزاخانوں میں، جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے اوپر سیاہ پرچم لگائے جائیں۔ مجلس میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماسک پہن کر آئے اور مجلس میں داخلے کے دروازے پر ماسک کی فراہمی کا انتظام رہے اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور پانی کا انتظام رہنا چاہیے ہے۔ نمبر 6، بزرگ، بچے اور حاملہ خواتین گھروں پر ہی رہ کر آن لائن مجلس میں شرکت کریں۔ نمبر 7، مجالس کو مقررہ وقت پر ہی شروع کیا جائے۔ جو وقت ہو مقرر مجلس کا، کہ جیسے 8 بجے مجلس ہوگی تو ٹھیک 8 بجے مجلس شروع کر دی جائے۔ مجلس میں مصافحے سے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا جائے۔ مجلس میں
पहले से पैक किया तबरुखी तकसीम किया जाए और मजलिस नज़र मौला के नाम से दस्तरखान बिछाने के बजाय इसे पैक करके तकसीम किया जाए। हमारा 10वां पॉइंट है, मजलिस या सबीलों पर बंद बोतल पानी ही तकसीम किया जाए, खुले खाने पीने से परहेज़ किया जाए। नंबर 11, जिन मस्जिदों या इमाम बाड़ों में मुस्तकिल फ़र्श बिछा रहता है वहाँ कबल मजलिस और बाद मजलिस क्लोरीन का स्प्रे किया जाए। इसके लिए क्लोरीन का स्प्रे पहले मजलिस शुरू होने से पहले और मजलिस शुरू होने के बाद ज़रूरी है। मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, ज़िला इंतज़ामिया है और मेडिकल की जो हिदायत है, WHO की जो गाइडलाइन है, उसके ऊपर हमें अमल करना है। हिंदुस्तान के जिन जिन शहरों में शाही जुलूस ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर असर बरामद होते हैं, ज़िला इंतज़ामिया को बरामद कराने का बंदोबस्त करें। यानी जहाँ जहाँ के ऊपर जुलूस बरामद होते हैं वहाँ वहाँ के ऊपर बरामद कराने का इंतज़ाम किया जाए और अज़ादारी का इंतज़ाम करने वाले अफराद मकामी इंतज़ामिया से राब्ते में रहें और इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। यानी ज़रूरी है जो हजरात मजालिस करते हैं वो इंतज़ामिया के साथ में राब्ते में रहें ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना होने पाए। ये तो थी हमारी मजालिस की एडवाइज़री ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की। अब जुलूसों की एडवाइज़री है, इसको भी आप हजरात से गुजारिश है कि तवज्जो से सुने। जो हमारी जुलूसों के लिए एडवाइज़री है, मुहर्रम के जुलूसों के सिलसिले में जुलूस के बानियान हस्ब साबिक़ ज़िला इंतज़ामिया से रुजू करें और इनकी गाइडलाइन के मुताबिक ही जुलूस अज़ा बरामद करें। नंबर 2, मोमिनीन जुलूस में फ़ासले का ख़ास ख्याल रखें। एक जगह जमा ना हो बल्कि तबरुकात की ज़ियारत करके अपने अपने घरों को रवाना हो जाएं। बाहर आएँ, जहाँ से जुलूस गुज़र रहा है जुलूस की ज़ियारत करें और ज़ियारत करके अपने घरों को वापस आ जाएं। नंबर 3, बुज़ुर्ग बच्चे या मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद अपने घरों से ही ऑनलाइन जुलूस की ज़ियारत करें। जो बुज़ुर्ग हैं या जो हजरात बीमार हैं या बच्चे हैं तो वो अपने घरों से जो ऑनलाइन जुलूस की ज़ियारत करें। नंबर 4, जुलूस में मास्क लगाकर आना ज़रूरी है और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है जुलूस में। नंबर 5, सबीलों पर सील बंद बोतल के पानी का इस्तेमाल किया जाए। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाए कि सबीलों के ऊपर खुला हुआ पानी ज़रा सा भी इस्तेमाल ना हो। इस साल मुहर्रम में हमें सील बंद बॉटल्स के ज़रिए से ही इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतें और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। फिर से एक दफ़ा आप, यह हमारा जो छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, जुलूसों के लिए मोमिनीन अपने अपने सूबों में सूबाई हुकूमतों और ज़िला इंतज़ामिया और मेडिकल हिदायत पर अमल करें। यह एडवाइज़री ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने बाकायदा पूरे हिंदुस्तान से राब्ता करके ऑनलाइन एक 23 जून को और एक 5 अगस्त को ऑनलाइन हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद साइम मेहंदी साहब क़िबला जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के सदर हैं, उनकी सिदारत में जो मशवरे आए मुफीद वो आप तक के पहुँचाए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने अपने चैनल्स के ज़रिए से आप पूरे मुल्क में, मुल्क के कोने कोने में, गाँव में, बस्तियों में, शहरों में मोमिनीन तक के बाकायदा इस ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एडवाइज़री को पहुंचा दें, क्योंकि आज़ादारी को ख़तरा नहीं है, ख़तरा सिर्फ आज़ादारों को है। यह इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि आज़ादारों को ख़तरा है, आज़ादारी को कोई ख़तरा नहीं है। ये 2 बड़े लोगों का वायदा है। अल्लाह का वायदा है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। ये आज़ादारी को कोई कभी ख़त्म नहीं कर सकता है। ये सब आज़ादारों की हिफाजत के वास्ते है ताकि आगे भी इंशाअल्लाह आज़ादारी हो सके। ये जो एडवाइज़री ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने जो एडवाइज़री जारी की है, ये पूरे मुल्क के मोमिनीन की ख्वाहिश थी और पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान के पास टेलीफोन आ रहे थे कि आप अपनी एडवाइज़री जारी करें। और क्योंकि अभी तक के कहीं से कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है कि मोमिनीन क्या करें, लिहाजा 19 रमज़ान और 21 रमज़ान की तरह ऐसा ना हो कि पूरे 2 महीने 8 दिन भी इसी तरीके से निकल जाएं कि हम ना कोई ताबूत उठा पाएँ, ना कोई मजलिस बर्पा कर पाएँ, ना कोई जुलूस उठा पाएँ। लिहाजा उसके वास्ते यह एडवाइज़री पूरे मुल्क ने जब हमारे ऊपर प्रेशर दिया, हमसे रब्ता कायम किया, तो हमने यह एडवाइज़री उनके कहने पर जारी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जगह
तरतीब है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब बदले में जहाँ पर कोरोना की एक शहर भी हमारे ऐसे जहाँ पर इस तरह के मसाइल नहीं है, वहाँ पर क्या करेंगे? जहाँ गोपर कोरोना के मसाइल नहीं है वहाँ गोपर जो भी ज़िला इंतज़ामिया आपको हिदायत दे आप उस हिसाब से करें। वहाँ गोपर अदादारी होना है, हर हाल में होना है अदादारी। जहाँ गोपर कोरोना नहीं है या कोरोना कम है तो वहाँ गोपर बाकायदा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए है कि हम जो भी वहाँ की सूबाई हुकूमत है या ज़िला इंतज़ामिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का तसादुम हुकूमत से, ज़िला प्रशासन से हो जाए। नहीं, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम गम मनाना चाहते हैं। तो जो परेशानी वो शहरों में ज़्यादा है, गाँव में क्या है कि अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और आबादी कम है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सकता है, तो वहाँ पर तो गाइडलाइन चेंज हो जाएगी, मतलब जो नीड है नहीं, जो जैसे जहाँ पर होती है वहाँ पर होती रहेगी, ऐसा कोई मसला। एक गुजारिश ये कर दी गई कि मोमिनीन मौजूदा सूबे की हुकूमत और ज़िम्मेदारों से रुजू करने के बाद जो हुकूमत गाइडलाइन आपको देगी उसके मुताबिक आप अमल करें। इसी में हमारा भी फ़ायदा है और मोमिनीन का भी है, और हम चाहते हैं कि आज़ादारी होती रहे किसी भी अंदाज में हो। देखिए, ये मोमिनीन का एक तसव्वुर हमारा भी है कि हम चाहते हैं कि लाखों का मजमा हो, मजलिसों में भी, जुलूसों में भी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लाखों ही से अगर हम जुलूस निकालें तो निकालें या लाखों ही से अगर हम मजलिस करते हैं तो करें। हम 5 आदमियों से सैयदा के लाल का गम मनाना है, हमें सैयदा को उनके लाल का पुरसा देना है, तो उसके लिए अगर हमारे पास 5 अफराद भी हैं तो हम इजहार गम करके अपनी गुलामी का शरफ हासिल करने की कोशिश करें। बहुत सवाल करने का मकसद ये था कि कहीं आपकी गाइडलाइन को लोग वो जो है प्रूफ ना कर दें क्योंकि उन्होंने शाह बोर्ड ने मना किया या आज नहीं, देखिए हमने कहीं नहीं तो हम भाई शहर के मसाइल अलग हैं, गांव के अलग है, हर सूबे के मसाइल अलग है, इसलिए मैंने सवाल आपसे नहीं, वो आपका फरमाना सही है। यहाँ के हालात जैसे हैं उस एतबार से इसी बात को जहाँ जैसे हालात हैं उस हिसाब से किया था, बाकायदा इसमें लिख दिया गया। जी आप बताइए सर, भैया एडमिनिस्ट्रेशन का ये होता है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन चलती है या ICMR की जो गाइडलाइन है वो सरकार पर आती है, लेकिन लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है खासतौर से आना लेवल पर, मसलन जैसे हम अपने गांव या अपने करिए के इलाके की बात करें तो 12 गाँव हैं और वहाँ के लिए 2 कांस्टेबल बहुत होते हैं, तो जो लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपनी पावर दिखाता है। तो क्या ऐसा है कि वहाँ के मोमिनीन आपसे राबता करें, यानी शिया पसंदा बोर्ड के ओहदेदारान से राबता करें ताकि उनको एक शेल्टर प्रोवाइड हो जाए कि वो अपनी आज़ादारी उसी वैल्यू गाइडलाइंस के प्रोवाइड होने के तौर पर कर सकते हैं? बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, रब्ता कर सकते हैं, बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड पूरी तरीके से पूरे मुल्क के हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ के ऊपर सूबे में, ज़िले में लोग हैं, वो वहाँ के ज़िम्मेदारान जो हैं वो फ़ौरन कोई प्रॉब्लम आई तो उस वक्त वो लखनऊ नहीं आएंगे, उस वक्त प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व होना है, तो उसको वहाँ पर सॉल्व करने के लिए उसके लिए एडवाइजरी जारी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। हज़रात सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए अज़ादारों की खिदमत में मेरी एक गुजारिश है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी के सिलसिले में आप सब मुनज़्ज़म हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहज़ादी कौनैन की तायीद रहती है, और माशाअल्लाह हज़ारों साल से इमाम हुसैन सलाम की अज़ादारी छोटे और बड़े जगहों पर मुनक़्क़िद हो रही है। इस साल जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना मर्ज़ की वजह से मोमिनीन में एक जुस्तजू है, और जैसा कि बरादर अजीज़ मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ने भी फरमाया कि बहुत से लोगों ने इनको फ़ोन किए और राब्ते किए, और हर अज़ादार ये चाहता है कि उसे एक मशअले राह इस सिलसिले में इस ज़माने में सामने आए। मेरी भी एक गुजारिश है जुमला अज़ादारों से कि आप अपने अपने इलाक़ों में एक कमेटी ऐसी तश्कील कीजिए कि जिसके अंदर उलमा हों, खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन हों, डॉक्टर्स हों और वकला हों, जो अज़ादार शिया वकला, डॉक्टर और उलमा और खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन हैं, और वो इस सिलसिले में जो चीज़ें आपको हिदायत की जा रही हैं उसके ऊपर अमल दरामद करा सकें और आपको समझा सकें, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ से मोमिनीन का
رجحان اس طرح کا بھی آتا ہے کہ صاحب 5 آدمیوں میں یا 25 آدمیوں میں ہم جلوس کیا اٹھائیں. اس کے لیے میری یہ اپنی رائے ہے کہ آپ جلوس ضرور اٹھائیے، چاہے 5 ہی آدمیوں میں آپ کو پرمیشن ملے، اور آپ اس سلسلے میں جو ہے حکومت کی ہدایات، علماء کی، اور جو ڈاکٹر ہیں، جو ایسی تنظیمیں ہیں جو اس کو فیس کر رہی ہیں، ان کی ہدایات کے اوپر آپ عمل کریں. تو آپ اس طرح کی ایک کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو مقامی طور کے اوپر ان معاملات کو ہینڈل کریں. جیسا کہ برادر عزیز مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے تو آپ ہم سے رابطہ، یعنی شیعہ پرسنل لا بورڈ سے رابطہ قائم کریں، اور آپ کی جو بھی مدد ہو سکے گی ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن ظاہر ہے آپ لکھنؤ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں تو فوری طور پر آپ کی مدد یہاں سے نہیں ہو پائے گی. اس لیے آپ مقامی طور پر بھی ایک ایسے افراد کی کمیٹی ضرور تشکیل کریں جو معاملات کو دیکھیں اور آپ کی مشکلات میں آپ کی مددگار ثابت ہو.